understand our strengths, right? Because first of all, I have to know about my strengths, understand about my strengths, then only I can tell the interviewer about my strengths. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि we will look at some words. मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आपके स्ट्रेंथ इसी वर्ड में रहेंगे, but this might be helpful. So what I will do is, now I can see the first name Divya Matre. After that, Divya, Karan, then Neha Matre, then Omkar. So 4 names I can see. Now, Divya, read the first bullet, and if there is number 1 on the right side, आप वो भी पढ़ो, फिर मैं उसके बारे में बताती हूँ. Second bullet, Karan. Third bullet, Neha Matre. Fourth, Omkar. But इसको पहले मेरी बात खत्म होने दो, Divya. Okay, start, Divya. Articulate good communication skill, can explain well and with confidence, is understood by others. Okay, now once you finish, you can mute yourself. Now, what does this mean? If you say I am articulate, it's the same as saying I have good communication skills. Now, communication skills means the ability to talk using a language. It could be Marathi, it could be English, it could be Hindi, it could be Gujarati, it could be Tamil, it could be Malayalam, whichever language we speak. And in the technical profile, knowing English is an advantage because आप बहुत बार multinationals के लिए काम कर रहे हो. So I can speak well से ज़्यादा बड़ी बात क्या होती है? I can explain well, right? And with confidence. अगर client को या सामने वाले को कुछ समझाना है तो मैं confidence से बता सकती हूँ या बता सकता हूँ. And the other person is able to understand me. अगर आप टेस्टर को बता रहे हो तो does the tester understand you? और वो क्लाइंट से अगर आप कुछ पूछ ही रहे हो तो आप राइट इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि नहीं. So this is about good communication skills. Now what I would suggest to each of you is that the slide is there, you have pen and paper around, right? तो अगर आपको किसी स्किल के बारे में सोच के लगता है कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, then just write down the left bullet, right? ऐसा नहीं कि एकदम उसी तरीके से लिखना, but write down the word. The second one, who was person second? I think it was Karan. Read. Yes, ma'am. Analytical problem solving skills, uses logic and reasoning. Okay. Now uses logic and reasoning, not just to solve problems in the aptitude class, but when there is a problem in the workspace. It could be any problem. How do I interact with my team members? मैं ये चीज क्लाइंट को कैसे समझाऊं? Do I make a word document or should I put in a PPT? मैं PPT में किस तरह के स्लाइड्स बनाऊं जिससे कि सामने वाले बंदे को समझ में आ जाए? So for all these things, logic is something very important because it helps you solve a problem, right? So it could be a technical problem, it could be a reasoning ka problem, and the same skill is transferred to every life situation. Because हम जब काम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास हजारों प्रॉब्लम आते हैं ओवर अ कैरियर ऑफ इयर्स, और वो नया प्रॉब्लम रहेगा, यूनिक प्रॉब्लम रहेगा. तो आप उस वक्त कितनी जल्दी और कितना ढंग का सॉल्यूशन सोच सकते हो, ये हमारे इंटेलिजेंस और टेक्निकल स्किल पे थोड़ा डिपेंड करता है, उससे ज्यादा वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर डिपेंड करता है. ओके, द थर्ड बुलेट. Commitment or dedication doesn't give up easily. Okay. No, see, 3 and there is nothing here like 3. This is 4. You have to match 4 and 4, 5 and 5, but 3 and 3 idhar nahi hai. So it's only left side. Commitment means dedication. Are you dedicated to your work, right?
मैंने आपको क्या बोला, आपको अपने स्ट्रेंथ पहचानने हैं, आपको उसका एग्जाम्पल भी रेडी रखना है. सो लेट्स लुक एट वन. आर्टिकुलेशन और गुड कम्युनिकेशन स्किल आपके इंटरव्यू में पता चल जाता है. अगर आपका वो है तो इंटरव्यू के 10 मिनट 20 मिनट के इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को समझ में आ जाएगा. इसलिए आपको जल्दी इसका प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपकी ईमेल राइटिंग बहुत अच्छी है तो वो भी आप यहाँ बोल दो. अगर रिटन में आप कर सकते हो तो जनरली इसके वो प्रूफ नहीं मांगेंगे, बिकॉज ये वो आपको सुन सकते हैं. नंबर 2, एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए मेनी टाइम्स दे कैन आस्क यू समथिंग देयर एंड देन. वो लॉजिक का प्रॉब्लम हो सकता है, रीजनिंग का, और वो एक लाइफ सिचुएशन भी हो सकता है. आपके ऑफिस में या आपके काम करने के टाइम में ये हो गया, हाउ विल यू डील विद दिस सिचुएशन. तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा आंसर राइट ही हो, वो तुम्हारा प्रोसेस देखते हैं. तुम कितने ध्यान से और कितने यूनिक तरीके से उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हो, कितना क्विक सॉल्यूशन लगा सकते हो, और वो सॉल्यूशन वर्केबल रहेगा कि नहीं. राइट. वो एफर्ट देखेंगे और प्रोसेस देखेंगे. आंसर कोई जरूरी नहीं कि 100% करेक्ट ही होना चाहिए, प्रोसेस ज्यादा जरूरी है. नाउ देन कमिटमेंट और डेडिकेशन. डेडिकेशन वो जनरली 15 मिनट की इंटरव्यू में नहीं देख सकते हैं. राइट. तो अगर आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपके टीम लीडर या बॉस ने आपको ये बताया है, तो वो एक एग्जांपल है डेडिकेशन का. अगर जैसे बहुत बार सिचुएशंस रहती हैं कि आपने कॉलेज के साथ साथ एडिशनल काम किया है, ऑनलाइन आपने C++ या कोई कोर्स इंडिपेंडेंटली किया, या आपने कुछ सीखा. और ये सिर्फ टेक्निकल का एग्जांपल नहीं है. सपोजिंग यू आर पर्टिकुलर अबाउट योगा और प्लेइंग बैडमिंटन और स्विमिंग और जॉगिंग, और आप टाइम निकाल के आप करते ही हो, तो इट शोज दैट यू आर डेडिकेटेड. तो इसकी एग्जांपल्स ऐसा नहीं कि हमारी सिर्फ टेक्निकल रिलेटेड होंगी, लेकिन you obviously you cannot say I watch this program every evening, that is, or a YouTube video, which is not an example of dedication. Then the next thing is Omkar, I think your turn to read. Omkar. Yes, ma'am. Number 5 Piyusha padhegi. Okay, Omkar. Determined, tenacious, ability to learn from failure, Okay. does not give up easily. Yeah. So what does this mean? Now this means these three are more or less the same, लेकिन not 100% same. Determined मेरे ख्याल से एक वर्ड है जो कि आप समझते हो, determination से determined. Tenacious means tough. You don't give up easily or you learn from failure. और इसके एग्जाम्पल्स देखो, बिकॉज एग्जाम्पल से ही हमारे इंटरव्यूअर को भरोसा होने वाला है. तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आप मैथ्स में स्कूल में अच्छे नहीं थे, बट यू डिसाइडेड टू टारगेट दिस, और आपने मेहनत की एंड यू बिकेम बेटर. राइट. ऐसा नहीं है कि आपको फिर जरूरी नहीं है कि आपको 90% ही स्ट्रेट अवे होना चाहिए, बट यू बिकेम बेटर. इट शुड शो फ्रॉम योर रिकॉर्ड. It could be that first year you did not do well. Sometimes we have a KT, first semester or second semester, right? So, but then if you are able to show that in the second exam you did much better, just pass se acha rehta hai, much better, right? So what does this show? This shows that there was a difficulty, आपने मेहनत की and you overcame this difficulty. बिकॉज ऐसा नहीं है कि फ्लूक पे पहली टाइम में फेल कर गया था, नेक्स्ट टाइम बाई फ्लूक में पास कर गया. एक क्लियर सिचुएशन है कि आपने मेहनत करके इस डिफिकल्टी को ओवरकम किया है. सो यू कैन गिव अ नेगेटिव सिचुएशन विच टर्न्ड इनटू अ पॉजिटिव लेटर. अगर प्रॉब्लम एंड तक रही देन प्लीज डोंट टॉक अबाउट इट. बट जैसे मैंने कॉमन एग्जांपल्स दिए, किसी भी एक सब्जेक्ट की डिफिकल्टी या कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट, राइट,
या फिर केटीज के सिचुएशंस, और पर्टिकुलरली अगर आपका परसेंटेज बाद में काफी बेटर हो गया, ये एक बड़ा एग्जांपल होता है टू शो दैट, या ये ऐसी चीज भी हो सकती है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपको पहले क्लाइंट में बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अब आप आराम से बात कर लेते हो। हम कभी कभी शुरू में हम स्ट्रेंजर से बात करने में हमें डिफिकल्टी होती है, लेकिन हम ग्रेजुअली, और हम जैसी हमारी एज बढ़ती है हम इसको टारगेट करते हैं। So you can talk about those examples also. Remember, for everything you have to talk about you have to give a situation or an example. Now, the fifth one, I had asked somebody to read. Piyusha, I think. Piyusha, please read. Fifth. Enthusiastic, energetic, positive thinker, display energy, always prompt with work. Okay. Now, enthusiastic and energetic, more or less, energy means physical energy. तुम उसको देखोगे, वो बंदा उठ जाएगा जब you will see it in the body and in the attitude, the manner of walking. Enthusiasm is this plus the manner of speaking. Yes, चल करते हैं. Yes sir, we can do it. Right? And this sort of thing is usually infectious. अगर एक बंदा बोलता है तो दूसरे भी रेडी हो जाते हैं. जैसे हम पिकनिक और आउटिंग और घूमने के लिए हमेशा enthusiastic रहते हैं, right? But our enthusiasm has to show about the workplace here, about the work that we are going to do. Okay, then इससे थोड़े बढ़ के एक चीज है, होती है पॉजिटिव थिंकर. तो कोई जरूरी नहीं है कि जो एंथुजियास्टिक है वो हमेशा पॉजिटिव थिंकर हो, ये कोई हमेशा जरूरी नहीं होता, लेकिन बहुत बार दोनों चीजें होती हैं. एनर्जी का मतलब है फिजिकल एनर्जी भी दिखनी चाहिए. एंथुजियाज्म इज मोर अबाउट दैट मेंटल लेवल, राइट? अबाउट द यस वी कैन डू इट काइंड ऑफ सिचुएशन. और पॉजिटिव थिंकर वो होता है जो कि डिफिकल्टी या फेलियर को हमेशा इस टाइप से लेता है कि आई विल find a way out. Yeah, there is a problem, but I will find a solution. I can deal with it. कोविड टाइम है, हम घर में हैं, प्रॉब्लम है, बट यस हम सोचेंगे तो उससे हम डील कर लेंगे. So these three are all big things, and this I would say is a bigger thing than first and second, but they are somewhat related. Now we can see it first and second, you will always see in that physical aspect in displaying energy. Now this person is always prompt with work, submissions, ideas. वो हर चीज में नहीं सर नहीं हो सकता है, टाइम नहीं है, आई डोंट थिंक, वो उसका नेगेटिव और पेसिमिस्टिक एटीट्यूड नहीं रहता है. वो पहले ट्राई करेगा तभी वो कुछ बोलने वाला, और वो ट्राई करने के लिए हमेशा रेडी रहता है. Now there is another slide after this, but I want you to look at these words on the left side and see first, second, third, fourth, fifth, और किसी किसी में 2-3 वर्ड्स दिए हुए हैं. इसमें से कोई है जो कि मेरे को डिस्क्राइब करता है? क्या ये मेरी क्वालिटी है? ऐसा नहीं कि हर क्वालिटी आपकी होगी, हो सकता है इसमें से कोई भी नहीं हो, बिकॉज जैसा मैंने बोला एक स्लाइड और है इसके बाद. बट अगर तुम्हारी है तो वो नोट डाउन कर लो, या यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो. इफ यू डोंट वांट टू राइट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो. Okay, so I'm moving to the next slide. Now after Piyusha, Praveen, Ridhish, Swapnil, Vinita and Vinod, right? You have understood what to do? So that will be one bullet each. So the next person, please read. Photos, notices and remember people, places and things about them. Okay. Now what does this mean? Who was that? So was this Swapnil? Sorry, one minute. It is Praveen. No. It is Praveen, ma'am. This was Praveen.
प्रवीण, ओके, नाउ प्रवीण, आपने जो पढ़ा उसका आप नंबर देखो. 6. आपने लेफ्ट साइड 6 पढ़ा है और राइट साइड 7 पढ़ा है. ओके, सो सिर्फ look at Praveen, only focused, right? So focus is a word that we know. कैमरे का फोकस खराब है, right? उस पे फोकस करके हम स्क्रीनशॉट या हम कैमरा का वो फोकस करके और हम फोटो खींचते हैं. सो व्हाट डज फोकस मीन? आई एम टारगेटेड एट दिस थिंग. ये काम करना है आज के दिन, सैटरडे ये काम करना है, शाम में मुझे ये काम करना है. ऐसा नहीं कि कभी भी किया और शाम में करना है तो करना है. आई एम गोइंग टू. सो व्हेन यू हैव फोकस, यू हैव क्लैरिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो, ओके इस टाइम में ये करना है. तो काम क्या है? इट कुड बी सिंपल थिंग, बट ये टास्क है. सो यू आर दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन. So the focused people are clear. Number one, they are clear, right? कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए सबको पता है. मुझे जॉब चाहिए, सक्सेस चाहिए, आई वांट टू मेक मनी, आई वांट टू डू दिस दिस दिस, वो सबको मालूम है. लेकिन आप कैसे करोगे, उसके लिए क्या क्या करना होगा? तो ओके, तो हम एक टू डू लिस्ट बनाते हैं. शॉपिंग लिस्ट रहती तो हम जैसे एक शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं, वो हमारी टू डू लिस्ट हो जाती है. तो फोकस्ड बंदा क्या करता है? वो एक टू डू लिस्ट बनाता है माइंड में और मे बी कंप्यूटर या नोटपैड या फोन पर, और वो सिर्फ बना के छोड़ता नहीं, वो उस पर एक्ट करता है. तो मुझे ये करना है, फिर उसको टाइम लाइंस देता है. 3 महीने में मुझे ये कंप्यूटर कोर्स करना है, मुझे अपना फिजिकल फिटनेस, कंसंट्रेशन, हेल्थ बेटर करना है. कुछ भी हो सकता है वो. इट कुड बी वर्क रिलेटेड, इट कुड बी योर money related, it could be skill set related, it could be your physical fitness related, but you are clear. Then you give it a timeline, right? इतने दिन में मेरा ये होना चाहिए. And the third and the most important thing is, वो बन के नहीं रहती है, आप उस पे काम करते हैं. You walk the talk. Okay? So 6th bullet Praveen has read. The 7th bullet, the next person. 7, and then you will see right side there is also 7. Match left and right. Right side अगर नहीं है वो नंबर तो right side का मत पढ़ो. Okay, I think it was Karan now. Ma'am, Riddhish. Okay, Riddhish. Observant notices and remembers people, places, and things about them. Okay, so you notice it, right? You see it when you go to a new office. You see, okay, इस साइड ये फ्लोर है, बाजू में उस कंपनी का ऑफिस है, राइट? फिर मैं इंटरव्यू के लिए ऑफिस में एंटर किया आपने, तो बहुत लोग हैं नोटिस कर लेते हैं, अच्छा उस साइड में वो था, वॉशरूम किस साइड था, सब कुछ नहीं, बट दे आर हैव दैट द प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड दे नोटिस. एंड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, दे रिमेंबर दीज थिंग्स. 100% नहीं, लेकिन वो उनको थोड़ा ध्यान रहेगा कुछ दिन तक. क्या क्या चीजें? दे नोटिस थिंग्स अबाउट पीपल, दे नोटिस थिंग्स अबाउट प्लेसेस, राइट? एंड दे नोट पीपल एंड प्लेसेस का क्या मतलब है? जैसे आपकी अगर मीटिंग हुई किसी के साथ, दूसरे कंपनी के बंदे के साथ, और वो मान लो उधर एक टीम लीड है और उसके साथ में 2 काम करते हैं, तो आप 2 मीटिंग में आप ये समझ गए हो कि जो टीम लीड है उसके साथ के जो 2 बंदे हैं, एक बहुत थॉटफुल है, वो बहुत सोच समझ करके और बहुत पते की बात बोलता है, और दूसरा बंदा बोलता बहुत है लेकिन उसमें उतना वेटेज नहीं रहता है, राइट? जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ. फिर या फिर इस टीम के साथ, जो हम दूसरी कंपनी के टीम के साथ जो हम काम करते हैं, वो बाकी लोग कुछ बोलते ही नहीं, उनका जो बॉस है वही सब कुछ बोलेगा. उसकी वो बिल्कुल डिक्टेटोरियल फैशन का आदमी है. सो यू हैव, ही विल नॉट अनाउंस इट, it is not written anywhere, but you understand the person, right? So we notice things about persons. Who are these persons? मेरी कंपनी के आदमी, मेरा इंटरव्यूअर, सामने जो रिसेप्शनिस्ट बैठी है, फिर जब मैंने ज्वाइन कर लिया तो मेरा जो बॉस है, टीम लीड है, मेरे साथ जो काम करने वाले टीममेट्स हैं,
क्लाइंट, जिससे भी हम वर्क के सिलसिले में मिलते हैं, पीपल. Then places obviously I am not talking about Goa and going on a holiday. I am talking about offices, right? Places की मैं इस सेंस में बोल रही हूँ, अभी तो हमारा मूवमेंट बिकॉज ऑफ कोविड बहुत कम हो गया है, लेकिन अगर आप जैसे जॉब के सिलसिले में अगर आप बैंगलोर जा रहे हो, नागपुर जा रहे हो, हम कभी कभी दूसरे ऑफिस जाके काम करते हैं कुछ दिन के लिए टेम्परेरी अपनी कंपनी के, तो आप समझ जाओगे, आप क्विकली सब कुछ से रिलेट कर लेते हो, यू आर एबल टू फाइंड योर थिंग, प्लेस, वे एंड सो ऑन. अभी ऑफिस के सिचुएशन से ही प्राइमरीली हम ये करेंगे, बिकॉज हमारा फिजिकल मूवमेंट कोविड के टाइम में अभी बहुत रेगुलेटेड है, लेकिन वंस दीज थिंग्स गेट अवे देन ऑब्वियसली हम 6 महीने 1 साल में विल गो बैक टू जो हमारा यूजुअल मोड होता था. ओके, सो यू नोटिस थिंग्स अबाउट पीपल एंड प्लेसेस. You notice them and you remember them. Things एक बहुत सिंपल सी चीज है, ये फाइल इधर किधर है, आपका कंप्यूटर कैसा ऑर्गेनाइज्ड है, हम इस फोल्डर में ये रखते हैं. So are you an observant person? So if you are saying yes, then you will be able to do these things. And one very simple way of asking this is, मेरे सामने जब इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं, मैं फिजिकल इसकी बात कर रही थी, जब हम ऑफ प्रोग्नोज हमारा ऑफिस वाशी में है और जब हमारे इंटरव्यूज हो रहे थे, तो द पर्सन हु वुड से कि आई एम ऑब्जर्वेंट, मैं उसको पूछती थी, अच्छा तुम अभी नीचे से चढ़कर ऊपर आए हो, मुझे बताओ वेटिंग रूम में क्या क्या था. तुम वहाँ 5 मिनट 10 मिनट वेट कर रहे थे, डिस्क्राइब द रूम टू मी. और कोई कोई लोग हैं वो बोलेंगे चेयर है, टेबल था, वहां कुछ एक चार्ट लगा था. देयर आर सम पीपल हु विल टेल मी एग्जैक्टली वहां पर जो 3 चार्ट लगे हुए थे वो क्या के बारे में थे, टेबल पे क्या क्या चीजें रखी थी, ये कुछ लोग मुझे एकदम बता देते हैं. वाटर कूलर था तो उसमें 2 स्विच था. सम पीपल आर दैट ऑब्जर्वेंट. सो दिस इज अ वेरी यूजफुल क्वालिटी. ऑफ कोर्स ऑल दीज क्वालिटीज आर वेरी यूजफुल. दिस इज व्हाई दे आर स्ट्रेंथ्स. Now, next bullet, number 8, but right side there is no number 8. Please remember. Read. जिसका भी turn है पढ़ो जल्दी. Excuse me. Okay. The person is not paying attention. तो next जो है उसके बाद का Ridhish, Swapnil is not Quality responding. conscious. Yes, ma'am. स्वप्निल पढ़ो आप जल्दी, उसके बाद विनीता, फिर विनोद. स्वप्निल रीड. Quality conscious, attention to detail. Hello, ma'am. Yeah, one minute. Hello. Just a minute. Let me maximize this. Okay, not an issue. Yeah, this is the next slide. So yours is now number 8. 8. Quality conscious, attention to detail. Okay, quality Notice conscious. and remember people, places, things about them. Yeah. Well, what is this person able to do? He is able to no, sorry. There is 8, there is no 8 on the right side. Swapnil, मैंने क्या बोला, 8 और right side में 8 है तो पढ़ो. So quality conscious, attention to detail. Invariably इस बंदे का खुद का काम बहुत अच्छा होता है. कुछ ऐसा नहीं कि कुछ भी उसने कर दिया. आप देखो अपने कॉलेज के दिन में ही आपको याद होगा, कुछ लोग पीपीटीज बनाते थे और उनके प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छे रहते थे, और कुछ लोग भर करके बना दी 25 स्लाइड, and some people would pay attention to formatting, font, layout, quality, put animation, put graphics, like they made excellent PPTs. तो क्वालिटी कॉन्शियस एक ऐसी चीज है जो कि हमारे लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हम जो हमेशा करते हैं उसमें वो बंदा क्वालिटी लाता है.
वो क्लाइंट से बात करने का तरीका है, वो एक मेल भेजना है या वो एक ऐप बनाना है, उसकी क्वालिटी हमेशा अच्छी रहेगी. He will pay attention to small things, right? And make sure that everything is as per quality. So the next bullet, number 9. There is 9 and there is 9 to the right side also. I think this is Vinita's turn. And then Vinod for number 10. Vinita, please read. Yes, ma'am. Resourceful and able to find solution by himself or herself. Okay. Able to find solutions means this is the problem. टाइम कम है, राइट? या हमें बीच में ये गैप है, हम इसको कैसे करेंगे? जैसे मैंने बोला, वर्क प्लेस पे आपको हमेशा न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आएगी. तो जो रिसोर्सफुल बंदा है वो खुद से दिमाग लगा के और वो सोचता है कि हम इससे कैसे डील करेंगे. और जो रिसोर्सफुल नहीं है वो सीधे बोलेगा, सर कांट, सर आई डोंट नो व्हाट टू डू, सर आई ट्राइड, आई एम नॉट एबल टू डू दिस. जो रिसोर्सफुल है वो सर्च करेगा, यूट्यूब के वीडियोस खुद से ट्राई करेगा, 4 बार करेगा नहीं होगा, सर्च करेगा किसी ब्लॉग में ये सॉल्यूशन है, यूट्यूब के वीडियोस में सॉल्यूशन है, किसी और को फोन करके पूछेगा, बिफोर टेलिंग द बॉस दैट आई कांट, आई ट्राइड बट आई कांट डू. बिकॉज इन टुडे इन द वर्ल्ड विथ इंटरनेट at your disposal, with blogs, YouTube videos, how to do, इतने कुछ रिसोर्सेज हैं. तो ये बोलना आज के जमाने में कि आई डोंट नो, आई ट्राइड बट मेरे से हुआ नहीं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. आपने ट्राई किया, कितना लेवल तक आपसे हुआ, उसके बाद अगर बिल्कुल ही नहीं हो रहा तो नो प्रॉब्लम, लाइक नोबडी इज सेइंग यू मस्ट बी गुड एट एवरीथिंग. तो आर यू दिस, right? Resourceful means are you able to do this? And as I keep telling you, you have to be ready with the example of a situation. ये situation आपको कहाँ से आएगा? For those of you who have not started working, this will come from your college life, because अभी 10 महीने पहले तक सब लोग college attend कर रहे थे. This will come from the projects that you have done, right? This will come from the events that you organized in college, tech fest, cultural fest, sports meet, जो भी आपने organize किए हैं. This will, और मैं बोलूँगी कि middle school की बात करने से अच्छा अगर आप junior college से example दे सकते हो तो ठीक है, not bad. But अगर आप college से example दोगे recent case में तो that is the best thing. और people who are working, वो अपने वर्क प्लेस से बिल्कुल ही एग्जाम्पल्स थे, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है. So the next one, I think this is Vinod's turn, for number 10. Vinod. Self-reliant, independent, will take initiative, work without waiting to be told. Yeah. So independent means आप ऑफिस में जाओगे, काम जब तक बताया नहीं गया फिर भी आप देखोगे कि मुझे करना क्या है, राइट? एंड नॉट जस्ट कीप सिटिंग देयर कि ओके मुझे बोला नहीं टीम लीड ने. सो यू विल टेक इनिशिएटिव. नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट आई हैव नॉट announced, so we have Vinod Gowde after this, otherwise I think everybody has read. Vinod, read the 12th one. Now time management, that is the 11th bullet. Time management means I know what to do when, I know and I do it. Not just I know, I do it. I walk the talk. Okay, Vinod Gowde, number 12. Read this is the last in this strengths list. Ability to work under pressure. Yeah. Pressure can be any type. Okay. Now pressure can be of any type, मतलब टाइम का प्रेशर हो सकता है, डेडलाइन का प्रेशर हो सकता है, ये हो सकता है कि आपके 4 टीम मेंबर हैं, आप लोग उसमें से एक बहुत अनकोऑपरेटिव टाइप का है, उससे आप कैसे कोऑपरेशन निकाल सकते हो. एक का काम का क्वालिटी बहुत खराब रहता है, एक का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट उस बंदे का खराब है. तो हमारे पास प्रेशर किसी भी कारण से आ सकता है, तो आप उस प्रेशर से कैसे डील कर सकते हो.
और उसका आंसर ये मत दो कि आई विल डू दैट पर्सन्स वर्क.